اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ یا سیدنا یا محمد نور من نور اللہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ کسی دوست نے سوال کیا، سائیں محبوب پیر ہمیں درود پڑھنا بہت اچھا لگتا ہے، آپ وہ درود بتائیں جو آپ کو پسند ہو اور آپ کو مجلس رسول خدا سے ملا ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ وہ راز ہوتے ہیں جو بتائے نہیں جاتے، کوئی ایسے راز ہوتے ہیں جو سینہ کائنات میں چھپا لیے جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جب چاہے اپنے نبی اور ولی نبوت اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہوگی۔ اس کے بعد مولا علی سے ولایت ہوئی، تو ولایت علی علیہ السلام کے فیضان سے اللہ امت کے اولیاء کو روحانی اور باطنی طور پر قبول فرماتا ہے۔ اللہ ان سے الہام اور القاء کے ذریعے بات بھی کرتا ہے امت کے اولیاء کے ساتھ، اور ان کو رسول خدا کی روحانی طور پر مجلس محمدی میں بھیجتا ہے، جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ دیدار سے اور اللہ تعالیٰ کے مشاہدہ حق سے وہ مستفیض ہوتے ہیں۔ یہ اولیاء کا حصہ ہے، امت محمدیہ کے اولیاء اللہ، یہ ان کا حصہ ہے کہ ان کو باطن سے حصہ دیا جاتا ہے، روحانیت سے، یعنی ہر روز جو رسول خدا کی مجلس لگتی ہے۔ یاد رکھیں، باطن میں سلطان بہو فرماتے ہیں کہ باطن میں مجلس محمدی روزانہ 9 جگہ پر لگتی ہے، اور 9 جگہ پر مجلس محمدی لگتی ہے، اور وہاں پر امت کے صالحین اولیاء کو بلایا جاتا ہے، جہاں پر ان کو مراتب باطنیہ دیے جاتے ہیں، اور صرف اس چھوٹی سی زمین کے نہیں، باقی کروں کے بھی دیے جاتے ہیں۔ یہ جو لامحدود آسمان پر آپ کہکشائیں دیکھ رہے ہیں، ہر کہکشاں کے ساتھ ساتھ جو جتنی زمینیں ہیں، یہ کوئی خربوں زمینیں ہیں، کسی کو نہیں، یہ خربوں لفظ بھی چھوٹا ہے، تو ہر زمین کے اوپر کائناتیں بس رہی ہیں، اور ان کے اوپر بھی ولیوں کی ڈیوٹی لگائی جا رہی ہیں۔ ادھر کے کئی ادھر لگے ہوتے ہیں، اور ادھر کے کئی ادھر ڈیوٹیوں پر لگے ہوتے ہیں۔ جیسا حضرت غوث پاک سید عبدالقادر جیلانی میرے مرشد کریم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں مکہ المکرمہ گیا حج کی نیت سے، میں نے وہاں پر ایک روحانی بزرگ کو دیکھا، تو غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ بڑا روحانی بزرگ تھا، میری روحانیت اس بزرگ سے روحانی طور پر باطن طور پر ملاقات ہوئی، تو میں نے اس سے پوچھا آپ کون ہیں؟ تو اس نے کہا جی میں اللہ کا بڑا صالحین نیکوکار پچھلے زمانے کا ایک آدمی ہوں۔ تو حضرت غوث پاک فرماتے ہیں، اللہ کے صالحہ بندے، آپ نے تو بڑے زمانے دیکھے ہوں گے، آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ دیکھا ہوگا، اور اس سے بیشتر بھی زمانے دیکھے ہوں گے۔ تو اس اللہ کے ولی نے، اس باطنی مخلوق، اس اللہ کے نیک بندے نے کہا، اے عبدالقادر جیلانی، میں نے اپنی زندگی میں 5 حضرت آدم دیکھ لیے ہیں، پتہ نہیں مجھ سے پہلے کتنے آدم تھے۔ حضرت آدم، اس کے بعد آدم کے بعد نبی آئے، ولی آئے، امت آئی، دنیا تباہ ہوئی، پھر آدم آئے، تو میں 5 آدم دیکھ چکا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو ایک حدیث میں 14,000 آدم بھی موجود ہے کہ رسول خدا نے فرمایا 14,000 آدم آ چکے تھے مجھ سے پہلے، میں آخری آدم کی اولاد ہوں۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی موجود ہے کہ لاکھوں نہیں خربوں بار ہو چکا ہے یہ سارا کچھ۔ یہ بھی ایک حدیث میں موجود ہے کہ خربوں کائناتیں ہیں، اس دنیا میں 14,000 آدم ہے، باقی دنیا میں پتہ نہیں کتنے آدم ہیں، جہاں جہاں پر حضور رحمت للعالمین ہونے کی ڈیوٹی دے رہے ہیں۔ نبی پاک آج بھی دوسرے کائناتوں میں ڈیوٹی کر رہے ہیں، کیونکہ وہ عالمین کی رحمت ہے، وہ ہر جگہ رحمتیں بانٹ رہے ہیں۔ آپ بھی ان کی شان والا کو کون سمجھ سکتا ہے؟ یہ تو ہمیں جاہل لوگ ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت پر بحث و مباحثہ کرتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے رسول خدا کی شان کیا ہے۔ وہ اسی کائنات، اسی دنیا میں ہی وہ اپنے مسئلوں سے وہ لوگوں کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سے، اصلی شان سے متعارف نہیں کروا رہے۔ یہ لامحدود کائنات محمد عربی کی جوتی کا صدقہ ہے، یہ جتنی سائنس ترقی کر گئی رسول اللہ کی نالین کی دھول کا صدقہ ہے۔ رسول اللہ کو کون سمجھ سکتا ہے؟ تو رسول اللہ آج بھی باطنی طور پر مجلس محمدی اپنی محفل لگاتے ہیں، جہاں پر امت کے نیک بندوں کو بلا کر ان کو مراتب دیے جاتے ہیں۔ مجھ فقیر کا کوئی دعویٰ نہیں ہے، میں بھی دعویٰ کروں اور آپ کہیں جی پیر صاحب اپنی خود نمائی کرتے ہیں، یا بعض بندے یہ بھی کہتے ہیں جی اپنا آپ دس رہے لوگوں، سانو اسی دس بھی رہے ہیں تو تہاڈی خاطر ہی دس رہے جے کہ تانوں بھی
कोई अल्लाह ताला इस चीज़ का फैज़ अता फरमा दे। बाकी मैंने कौन सा, मुझे आपसे कोई मतलब है या आपको भी मुझसे कोई मतलब होगा। ये सारी बातें इसलिए बताई जाती हैं कि काश कोई इस रास्ते पर आ जाए। ये वो सच्चा रास्ता है जो इस फ़कीर ने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी आंखों से देखा, जो सीधा रसूल अल्लाह तक जाता है। वो कौन सा रास्ता है? वो मुर्शिद करीम का बैत होकर इस तसव्वुर मुर्शद, तसव्वुर इस्म मोहम्मद और तसव्वुर इस्म अल्लाह ज़ात का तरीका है। तो यही वो तरीका है जो हक और सच्चा, जो आज भी इल्हामी और मजलिस मोहम्मदी में बुलाकर दिया जाता है, इल्हामी तौर पर, बातनी तौर पर, रूहानी तौर पर। तो पूछा गया साईं महबूब पीर दरूद पाक। तो मेरे दोस्तों, दरूद पाक वो वजीफा है जो अल्लाह का अमल है। सारे अमल फरिश्तों के होंगे, कोई जो अमल है वो हूरों के होंगे, गिलमान के होंगे, दुनियादारों के होंगे, कोई भी अमल है वो जो सारे करते होंगे, लेकिन खासा जो खुदावंद अकबर का है, जो अल्लाह ताला की तालीम है, जो अल्लाह ताला का वजीफा है, जो अल्लाह ताला चिल्ला करता है, जो अल्लाह ताला वजीफा करते हैं, जो अल्लाह ताला जिस तवज्जो में रहते हैं, उस तवज्जो का नाम दरूद पाक है। अल्लाह जिसकी मोहब्बत में रहते हैं, उस मोहब्बत का नाम दरूद पाक है। अल्लाह जिस शान बेनियाजी में झूम झूम कर अपनी शान के मुताबिक जो खुदावंद अकबर कलाम फरमाते हैं, उस कलाम का नाम दरूद पाक है। दरूद पाक यानी रिसालत माँ पर रहमत और सलामती भेजना, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफें करना, इसको दरूद और सलाम कहा जाता है, दरूद पाक कहा जाता है। अच्छा, मुझ फकीर से कोई पूछा गया था कि दरूद के सलाम के मैनी क्या हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें जो हमारे मुर्शिद हजरत सुल्तान बाहू, हजरत फ़कीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी कुलाचवी और हजरत फ़कीर अब्दुल हमीद कामिल सरवरी कादरी कुलाचवी रहमतुल्लाह अलैह, आप हजरतों के फैजान से जो इस फकीर को मिला, दरूद के मैनी है रिसालत माब की अपनी जुबान में तारीफ बयान करना। जो भी आपकी, कोई पंजाबी है, उर्दू है, इंग्लिश है, किसी भी जुबान में आप रसूल खुदा की आहसन तरीके से, जितने खूबसूरत तरीके से तारीफ करेंगे, समझिए आप उतने ही अल्लाह के कुर्बे खास में जाएंगे। अब सोच लें आपने नबी पाक की तारीफ कैसे करनी है। नबी पाक के इल्मे गैब पर बहस नहीं करनी, ना हाज़िर और नाज़िर पर बहस करनी है, ना उनकी किसी चीज पर बहस करनी है। आप या मैं कुरान को नहीं समझ सकते, हाँ ये बात, क्योंकि ये कलाम गैर मखलूक है, ये किसी गैर मखलूक की समझ में आ सकता है। हमारी समझ में उतना ही आना है जितना मौलवियों ने तर्जमे कर दिए हैं। कुरान मखलूक नहीं है जो मखलूक की समझ में आ जाएगा। कुरान खुदा का कलाम है, ये गैर मखलूक है, ये किसी गैर मखलूक की को समझ आएगा। अब गैर मखलूक तब होंगे जब आप फना फिल्ला और बका बिल्ला की मंजिल पर जाएंगे, जब आप अल्लाह में फना होकर बका हासिल करेंगे, फिर आपको समझ आएगी ये कलाम किस मर्तबे और मुकाम का नाम है। अपने तर्जमे करके कि वो बंदा मुझे सेंड कर रहा था जी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मुझे इल्मे गैब नहीं है, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे क्या पता कल क्या होगा। देखा वो कहन देखिया हजूर नु किसे पास गल दा नहीं सी पता, नु अपने नफ्स नुकसान दे मालिक सी। मैं हैरान, मैं देख लो जो मौलवियों के हथी चढ़ गया और उन्होंने अपना जो तर्जमा किया इन्हू बेअदब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेअदब करेगा। अल्लाह हिदायत दे, अल्लाह रहम फरमाए। मेरे दोस्तों याद रखें, मैं फिर बता दूं, कुरान साहबे कुरान पर उतरा है और मोहम्मद अरबी के कलम पर उतरा है। पहले फनाफी रसूल की मंजिल पर जाएं, यानी पहले रसूल अल्लाह की इश्क की मस्ती में गुम हो जाएं, पहले मोहम्मद मुस्तफ़ा जैसा कल्बे अतहर लेकर आए, उस जैसी सोच और ज़र्फ लेकर आए, फिर उस कलाम का तर्जमा कर लीजिएगा अगर आप कर सकते हैं तो, अगर आप उस मुकाम पर पहुंच सकते हैं तो। कुरान तो फना फिर रसूल, फना फिल्ला और बका बिल्ला पर जाकर समझ आता है किन लोगों का कलाम है, फिर उन हस्तियों में जाएं जिनका कलाम है। तो कुरान कहता है अहसन तरीके से मेरे महबूब मोहम्मद अरबी पर दरूद भेजो, उनकी तारीफें करो, उनकी सलामतियां, उन पर सलाम भेजो, उनकी अपने आसान तरीके से उनकी तारीफ करो। अब जो जितने खूबसूरत तरीके से रिसालत माब की तारीफ करेगा, उतने ही अच्छे तरीके से अल्लाह के कुर्बे खास में दाखिल होगा, अल्लाह की रहमतें उस पर छमा छम बरसेंगी, क्योंकि दुरूद पाक वह वाहिद वजीफा है जो अल्लाह के अजाब को ठंडा कर देता है और बंदे को विलायत में जल्दी ले जाता है। दुरूद पाक बंदे की मुसीबतें दूर कर देता है।
दुरूद पाक अल्लाह के गुस्से को ठंडा कर देता है। दुरूद पाक बंदे के गुनाहों को माफ करवा देता है। दुरूद पाक बंदे में हलीमी इखलाक हसना पैदा कर देता है। दुरूद पाक बंदे की आंखों में नूर और कल्ब में सरूर पैदा कर देता है। दुरूद पाक बंदे का सीना रोशन और चेहरा मुनव्वर कर देता है। दुरूद पाक बंदे का किरदार खूबसूरत और चेहरे पर हुस्न और जमाल ले आता है। दुरूद पाक रिसालत माब की मजलिस मोहम्मदी का दरवाजा खोल देता है। दुरूद पाक रसूल पाक का दीदार करवा देता है। दुरूद पाक पढ़ने वाला बंदा 24 घंटे नबी पाक की बारगाह में पहुंच जाता है। दुरूद पाक बंदे की शफात करता है क़यामत वाले दिन। दुरूद पाक अजाब कब्र से बचाता है, मौत की सख्ती से बचाता है, कब्र के अजाब से बचाता है। दुरूद पाक मैदान माशर की सख्ती से बचाता है। दुरूद पाक बंदे को जन्नतुल फिरदौस में ले जाता है। दुरूद पाक वो अमल है जो अल्लाह की शान है। अहसन तरीके से, खूबसूरत तरीकों से रसूल अल्लाह पर दुरूद सलाम भेजा करे, यानी कि तारीफें बयान किया करे नबी पाक की। ये नात भी रसूल अल्लाह की तारीफ है। देखिए अब अल्लाह दुरूद भेज रहा है, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा यासीन वल कुरानिल हकीम। ये अल्लाह तारीफ रसूल अल्लाह की कर रहा है, ये नाते हैं रसूल अल्लाह की, ये दुरूद है जो अल्लाह भेज रहा है। बाद लोग अल्लाह कौन सा दुरूद भेज रहा है? दुरूद के मैंने ये तारीफ करना, सलाम कहना। अल्लाह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा मुबारक को देखकर फरमाते हैं, वद्दुहा, ए चमकते दमकते मुखड़े वाले, वल्लैलि इज़ा सजा, ए काली रात की जुल्फों वाले, यासीन वल कुरानिल हकीम, ए यासीन की दंदान की चमक वाले, हामीम की जबी वाले, और वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा की जुबान वाले, हाथ यदुल्लाहि फौका अयदीहिम, सीना अलम नशरह लका सदरका, आंखें मा ज़ागल बसरा, पेशानी वल कमर। इल्म की बात हो तो पूरा कुरान उनके इल्म की तारीफ, इन्ना का लआला खुलुकिन अजीम। सीरत की बात, लक़द कान फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। उंगलियों की बात, वमा रमैत इज़ रमैत वलाकिन्नल्लाह रमा। कदमों की आहट, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। चादर लेना, या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला। कमली की बुक्कल मारना, या अय्युहल मुदस्सिर। मेरे और आपके महबूब की आला से आला तरीकों में अल्लाह ताला ने शान और अजमत को बयान किया और हमें समझाया कि मेरे नबी की तारीफों में लग जाओ, दिन रात रसूल अल्लाह के गुण गाया करो। तो इसी को दुरूद सलाम कहा जाता है। ये अमल आपको दुनिया आखिरत में अजाब से बचा लेगा, अल्लाह के कहर से, अल्लाह के अजाब से ये अमल आपको बचा सकता है कि अल्लाह के महबूब मोहम्मद रसूलुल्लाह की तारीफ में लग जाओ। और जब तारीफ में लग जाओगे तो बेसाख्ता जुबान पर दुरूद सलाम शुरू हो जाएंगे, तारीफें शुरू हो जाएंगी। तो ये मुझ फकीर से तो जब ये राज मुझ पर खोले गए तो दुरूद सलाम के मैंने हजूर की तारीफ है और आसान तरीके से करें। बाकी दुरूद इब्राहिम है, ये भी रहमत है। अब कोई दुरूद मुकद्दस पढ़ता है, ये भी रहमत, आप इसका तर्जमा पढ़ लें। दुरूद ताज, आप इसका सारा तारीफें रसूल अल्लाह की। दुरूद लखी पढ़ लें, 5 सूरता में लिखा है, सारी रसूल अल्लाह की तारीफ है। दुरूद मुकद्दस पढ़ लें, सारी रसूल अल्लाह की तारीफ है। दुरूद सलातुल कुबरा पढ़ लें, गौसे पाक से मनकूल है, सारी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ है। और दुरूद हजारा, दुरूद नारिया, दुरूद गौसिया, दुरूद खिजरी, ये जितने भी दुरूद पाका पढ़ लेंगे सब रसूल अल्लाह की तारीफ है। ये फकीर ज्यादा दुरूद कादरिया पढ़ता है, जैसा कि वो मैंने पहले पढ़ा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आले सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। ये दुरूद पाक अल्हम्दुलिल्लाह मैं पढ़ता हूँ। और मुझे जो मजलिस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात बताने वाली नहीं है, पर इस फकीर को जो इनायत हुई वो दुरूद पाक है, सल्लल्लाहु
अलैका या सय्यदना या मोहम्मद नूरुम मिन नूरिल्लाह। तो ये मजलिस मोहम्मदी का दरवाज़ा और हजूर का दीदार दिन रात ज़ियारतें होने के लिए इस फ़कीर का तजुर्बा भी है और आपको इजाज़त भी है ये दरूद पाक की कसरत करें, कोई भी दरूद पाक पढ़ लें। पर शर्त ये होती है, फिर आपको बता दूं, क्या आप किसी के मुरीद हैं? अगर नहीं है तो किसी कामल वली अल्लाह को ढूंढें, क्योंकि तासीर पैदा तब होगी जब आपकी जगह आपका मुर्शद होगा। हमारी जुबानें गुनेगार हैं, वजूद गुनेगार है, इसको पाक करने के लिए आपको किसी पाक वली अल्लाह के पास जाना पड़ेगा। पाक किसी कामल दरवेश मर्द कमाल के पास जाएं, सरवरी कादरी हमारे तरीके में आ जाएं, किसी के भी तरीके में आ जाएं, पर कमाल मर्द कमाल हो, मुर्शद हो, कामल वली अल्लाह हो, उसके जिसका लतीफ़ा नफसी कल्बी रूही सिर्री खफी मखफी सारे जिंदा हों। आलमे नासूत मालाकूत जबारूत लाहूत बाहूत याहूत और हुवियत की हा में वो मिसले बा शहबाज लामका हो, ऐसा मुर्शिद कामल होना चाहिए, उसकी बैत हो जाए। जब आप बैत हो जाएंगे तो अपना आप उसको दे देंगे और उसका पाक वजूद खुद रख लेंगे। इसके बाद जब आप कोई इसमें मोहम्मद का तसव्वुर करेंगे, इसम अल्लाह का तसव्वुर करेंगे, तो कामयाबियां ही कामयाबियां आपको मिलेंगी इंशाअल्लाह। क्यों? क्योंकि आपने अपना जो दुनियावी वजूद था अपने मुर्शद के वजूद नूरी वजूद में, नूरी हजूरी में गुम कर दिया। अब मुर्शद ही आपको लाहूतोला मकाम में ले जा रहा है। तो किसी कामल वली अल्लाह के बैत हो जाए ताकि ये सारी बरकतें आपको मिल जाएं, तालब हो जाएं, बैत हो जाएं, मोहब्बत करें अल्लाह के वलियों से और इन दुरूद पाक की सारी फजीलत को हासिल कर दें। अल्लाह ताला से दुआ है खुदावंद अकबर हम सबको खूबसूरत से खूबसूरत तरीके से जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद सलाम पढ़ने की तौफीक दे। मौला अली पर भी दरूद है, उनकी आल पर भी दरूद है, मुर्शद पर भी दरूद है। दरूद में नहीं तारीफ, आसान तरीकों से आप तारीफ करना सीखें मुर्शद की, रसूल खुदा की, अहले बैत व सहाबा की, औलिया खुदा, आसान तरीके से, खूबसूरत तरीके से। और ये जो मैंने दरूद पाक बताए हैं सारे पढ़ा करें। दरूद पाक इंशाअल्लाह मेरे और आपकी बख्शिश का सामान बन जाएगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।